राघव और कमल घर लौट आए थे, जहां सुजल उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं कितनी देर से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। मुझे जल्दी से लालटेन वाले भूत की कहानी सुनाओ। कमल और राघव दोनों ही सुजल को लालटेन वाले भूत की कहानी बताते हैं। अरे बेवकूफों, मैं आज से 70 साल पहले ही मर चुका हूँ। वो बूढ़े बाबा फिर लालटेन वाला हाथ बन जाते हैं। अच्छा, फिर सुनो मेरी कहानी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I will never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't wanna hear this. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. I need a change in my life, cause I just feel like I've been nothing that makes me happy. I'll always show up. I'm paying for my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. I could gas, think I'm okay and last, but I don't know if that can erase all the past and the Pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I'm in through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Let's go. I don't ever slow up, no I don't take shit. Yes, I got like my stripe, my right to fight. If you wanna play tough and wanna hate, and this is my game to play, to claim a brand new name. I don't ever slow up, no I don't take shit. I'm a bit nervous, but I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? Make a statement. I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Stepping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, Could be so remarkable. thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, from my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I never spent for ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अब बाबा एक बात बताइए, अब वह राक्षस गड्ढे से बाहर तो नहीं आएगा ना? वैसे उस गड्ढे को हमने मिट्टी से ढक दिया है। बालक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर उस राक्षस को कैद करने के लिए गड्ढे को हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों से बंद करना पड़ेगा, ताकि वह कभी भी बाहर ना आ सके। और हाँ, यह काम तुम्हें दिन में करना होगा, क्योंकि यदि रात हो गई तो वह राक्षस गड्ढे से भाग भी सकता है। ठीक है बाबा, मैं अभी खेत में जाकर गड्ढे को पत्थरों से बंद कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा मित्र। तुमने कल मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। ठीक है, चलो फिर। रघु और मैं दोनों ही खेत में पहुंच गए। हम दोनों ने गड्ढे को बंद करने के लिए पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया। चलो ब्रिज, पत्थर इकट्ठे करते हैं। हाँ चलो। हमें पत्थर ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों ने गड्ढों को पत्थर से ढकना शुरू किया। अचानक बुरी शक्ति ने रघु को फिर से पकड़ लिया। रघु चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ ब्रिज, मुझे बचाओ। रुको रघु, मैं अभी तुम्हें इस बुरी शक्ति से छुड़ाता हूँ।
मैंने साधु बाबा की दी हुई राख को डंडे पर लगाकर राक्षस को मारा। उस राक्षस ने तब रघु को छोड़ दिया। आओ मित्र, जल्दी से इस गड्ढे को बंद कर दें, इससे पहले कि ये राक्षस दोबारा से हम पर हमला कर दे। हम लोग दोबारा से उस गड्ढे को जल्दी जल्दी पत्थरों से ढकने लगे, लेकिन अब शाम होने वाली थी, इसलिए मैंने रघु से कहा, रघु, शाम होने वाली है, यदि ये गड्ढा रात से पहले नहीं भरा तो अनर्थ हो सकता है। तुम गांव जाकर और लोगों को ले आओ जो गड्ढा ढकने में हमारी मदद कर सके। ठीक है ब्रिज, लेकिन क्या तुम अकेले संभाल लोगे? हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी से जाओ और लोगों को लेकर आओ। इतना कहकर रघु गांव से और लोगों को लेने चला गया, जो हमारे साथ मिलकर गड्ढा ढकने में हमारी मदद करने वाले थे। मैं गड्ढे के पास बैठकर गांव वालों का इंतजार कर रहा था। गड्ढे में से डरावनी आवाजें आ रही थी। डर के कारण मैंने बड़ा सा पत्थर उठाकर गड्ढे के अंदर फेंका तो उस राक्षस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मेरी मदद करो, इस राक्षस ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं बहुत देर तक सहायता के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वहां मैं अकेला था। फिर राक्षस ने मेरा हाथ गड्ढे में खींच लिया। तभी मुझे रघु 2 गांव वालों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। रुको ब्रिज, मैं तुम्हें अभी बचाता हूं। रघु ने पूरी शक्ति लगाकर मुझे बाहर खींचा, लेकिन तब तक राक्षस ने मेरा हाथ अपने दोनों दांतों से काट लिया था। मेरा हाथ, मेरा हाथ, इस राक्षस ने मेरा हाथ खा लिया। हाँ ब्रिज, तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो। रघु ने जल्द से जल्द गड्ढे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह गड्ढे को बंद नहीं कर पाया। हम इस गड्ढे को इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। तुम साधु बाबा को ले आओ, उन्हें सारी बात बताना और हमारी सहायता करने के लिए विनती करना। मेरे ऐसा कहने पर दोनों गांव वाले मिलकर साधु बाबा की कुटिया में गए और साधु बाबा को सारी बातें बता दी। बाबा जल्दी चलो, बुरी शक्ति ने ब्रिज का हाथ काट लिया है। हमें आपकी सहायता की जरूरत है बाबा, हमें उस बुरी शक्ति से बचाइए। ऐसा सुनकर साधु बाबा जल्दी से अपना डंडा और कमंडल लेकर खेत की ओर चल दिए। यहाँ खेत पर हम दोनों साधु बाबा का इंतजार कर रहे थे। शाम खत्म होने वाली थी और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, गड्ढे से भयानक डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई। हम दोनों को डर लग रहा था कि रात से पहले साधु बाबा नहीं पहुंचे तो राक्षस हमें खा जाएगा। ब्रिज, अंधेरा होने वाला है, अगर साधु बाबा जल्दी नहीं आए तब क्या होगा? हम दोनों ने 4 लालटेन गड्ढे के चारों तरफ जलाकर रख दी ताकि राक्षस हम पर हमला ना कर सके। साधु बाबा को आने में देर हो रही थी और रात हो चुकी थी। अचानक से बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी, जिसके कारण सारी लालटेन बुझ गई और हमारे पास कोई रोशनी नहीं थी। अब उस राक्षस ने सारे पत्थर पर जोर जोर से हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सारे पत्थर इधर उधर उड़कर गिर गए और गड्ढा खुल गया। अब राक्षस हमारे सामने खड़ा था और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। रघु, इस राक्षस ने अब मेरा पाँव पकड़ लिया है, कुछ करो। रघु ने जल्दी से बाबा का दिया हुआ जल मेरे पैर पर डाल दिया, जिसके पड़ते ही राक्षस चिल्लाने लगा। अब राक्षस को बहुत गुस्सा आ गया था और वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरे भागो, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। लेकिन अगर हम भाग गए तो इसको पकड़ने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं, लेकिन मैं इसे अपने खेत और गांव को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अच्छा, फिर बताओ हम कैसे इस राक्षस से लड़ाई करें? तुम लालटेन को जलाओ, मैं कुछ और उपाय ढूंढता हूँ। मैंने वह डंडा उठा लिया जिस पर जादुई राख लगी हुई थी और मैं राक्षस को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अरे ओ राक्षस, अगर तुझे इस खेत की फसल खानी है तो पहले मुझसे लड़। मेरा कटा हुआ हाथ देखकर राक्षस समझ गया था कि मैं उसको कैद करना चाहता था। वह बौखलाया हुआ मेरी तरफ आया और उसने मुझे उठाकर अपने नाखूनों से घायल कर दिया। जैसे ही राक्षस मुझे खाने जा रहा था, मैं चिल्लाया, रघु, जल्दी से लालटेन लेकर आओ। रघु ने लालटेन मुझे थमा दी। मैंने लालटेन राक्षस को दे मारा। काले राक्षस का पूरा शरीर जलने लगा, जिसके कारण वो नदी की तरफ भागा और नदी में छिप गया। ब्रिज, तुम ठीक हो ना? नहीं मित्र। और तभी साधु बाबा आ गए। बालक, तुम के कारण हम सब खुशहाल हैं। धन्यवाद बाबा।